Santosh, all of you. So nice to see you this very morning for Happy Minds. Chandramohan, Koja, Ganesh. Wow. It's so wonderful and so important that you stay and you are there for the meditation. ये meditation मेरे लिए नहीं, ये meditation आपके लिए है. मैं तो करता ही हूँ साथ में. But for those who are not used to meditation, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका है that you kind of get started on this concept of meditation. चलिए एचएम चालू करते हैं. Welcome to Happy Minds number 1137. तो जो आज पहली बार Happy Minds में आए हैं, आप सबका स्वागत है. Welcome to Happy Minds. You have been invited. You have been brought in by your loved ones, your friends. उन्होंने आपको invite किया है, आपको यहाँ बुलाया है. It's wonderful to see all of you. And if you are joining in for the first time, तो आप लिखिएगा कि आप कौन से शहर से हैं. First, you can write in first and the city you are from. तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हैं. And I hope I'm visible enough. Okay, you have your sharings going on, listening for the first time, traveling by Vande Bharat train. Arey wah, theek hai. Good. On your way to Mumbai, I assume, or on your way to Sholupur, I don't know where you're going. Prashant says, for the past 24, 25 years, I visit Lord Ayyappa temple on Saturdays in Aund. Never missed it. I'm in Pune. The Aarti gets over by 7. And here I am. Just after that, I've started attending your session for almost 3 months now. I can't thank you and Rajesh sir for introducing me. Oh, that's wonderful. Thank you for sharing, Prashant. So nice that you have keyed in your thoughts, and happy that you have been there regularly for the last 3-4 months. Chandramohan, Shantanu, great. Unmesh, welcome to Happy Minds. And all those who have just joined in from YouTube, मैं आपको हल्का सा everybody, namaste everybody on YouTube who have joined in. And it's wonderful to see all of you. मुझे याद है last HM में I look young. What do you mean I look young? I am young. हाँ, कोई 52 years कोई बूढ़ा होता है इंसान? I'm young. So खबरदार किसी ने बोला ऐसा कि I look young. I am young. मुझे याद है last HM में we had as we were winding up the HM, तो नरेंद्र गोयल थे, उन्होंने कहा कि let's all work on making the attendance and Happy Minds to triple what it is. तो 3 गुना इसको बढ़ाते हैं. And so nice that so many of you have brought in and you have joined in today. And I look vibrant because of the color which I am wearing, and I am vibrant because my life is vibrating. So all those who have joined in, it's wonderful. Let me just take you through what Happy Minds is. जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया, we start with meditation, and that's what I say कि आप लोग meditation miss मत करिए, because कुछ लोग meditate नहीं करते हैं, कुछ लोग क्या बहुत से लोग regularly meditate नहीं करते, तो कम से कम Saturday एक समय हो जाता है where you end up meditating or you start with meditation. तो शायद ऐसा करते 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 अगर आप कुछ महीने मेरे साथ रह लिए, तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन मेडिटेशन की आदत लग जाएगी, और वो 1 दिन से 2 दिन हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 6, and then it will be every day. And so light has come in. देखो मैंने सही बात करी मेडिटेशन की, और भगवान ने भी कहा चलो सब ठीक ठाक कर देते हैं, and the power is on. So be there in meditation. So we start with meditation at 7, and then we have a round of success stories, and then I share my thoughts. और आज तो एक भरमार है सक्सेस स्टोरीज की. इनफैक्ट आई वाज काइंड ऑफ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट मैं कौन सी स्टोरी शेयर करूं और कौन सी स्टोरी ना शेयर करूं. आई गॉट लॉट ऑफ स्टोरीज लाइंड अप टुडे. तो ये सक्सेस स्टोरीज के बारे में जब मैं सोच रहा था कल कि कौन सी शेयर करूं कौन सी ना करूं, एंड रीडिंग देम वाज सो वेरी इंस्पायरिंग. एंड एक लाइफ 360 बैच में मैं एक मॉडल लेता हूं व्हिच इज कॉल्ड द माइंड मॉडल ऑफ इंस्पिरेशन. एंड उस मॉडल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कैसे क्रिएट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम इंस्पिरेशन, एंड इंस्पिरेशन कैसे होता है, कहाँ से आता है. एंड उसमें ना 5 लेवल्स ऑफ इंस्पिरेशन की मैं बात करता हूँ. तो कल जब मैं ये सब स्टोरीज पढ़ रहा था, वी वर काइंड ऑफ स्टोरीज को इकट्ठा कर रहा था कि कौन सी शेयर करूं कौन सी ना करूं, बिकॉज हर एक स्टोरी में इतनी ताकत थी कि मैं पढ़ के इंस्पायर हो रहा था. तो मुझे लगा कि कौन सी स्टोरी को ना रखूं, बिकॉज ना रखूंगा तो इनजस्टिस है उसके साथ. बट ऑफ कोर्स आई कुडंट शेयर ऑल, सो वी हैड 10-12 व्हिच केम इन द फाइनल लिस्ट, एंड उसमें से फिर हमने
चार पांच को पिकअप किया, एंड आई थिंक आई शेयर विद यू 3-4 टुडे। एंड जो नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उनकी स्टोरीज इंस्पायरिंग नहीं थी, बट आई फील आई कांट शेयर मोर देन 3-4 एवरी वीक। सो कीप ऑन शेयरिंग योर स्टोरीज विद अस, एंड अगर आप हमसे स्टोरी शेयर कर रहे हो इसका मतलब कुछ अच्छा कर रहे हो। एंड बड़ा जरूरी है कि हम अच्छा कुछ करते रहें और हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ किसी और के लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाए। देखो, लास्ट टाइम मैंने बात करी थी अबाउट टू काइंड्स ऑफ पीपल, राइट? मैं उसमें हल्का सा आज आई विल टेक यू फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन ऑफ व्हाट दोस टू कैटेगरीज ऑफ पीपल आर। एक मैंने बोला था पीपीडब्ल्यू और एक बोला था मैंने डीपीडब्ल्यू। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा उसके बारे में, बट बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, let me go back to the story side कि in the mind model I speak about कि inspirations होते हैं और उसके 5 levels होते हैं, और 5 levels हैं कि 5 levels में highest level is where you get inspired the most and the maximum it stays for a long period of time। उसमें third level की inspiration है when we listen to success stories of people who are like you and me, जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे लेवल के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं। जब हम उनकी स्टोरी सुनते हैं, अब हम सुनते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ गए। हम जब सुनते हैं कि उन्होंने क्या पा लिया, क्या अचीव कर लिया, व्हाट दे बिकम, इट इज अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एंड दैट इज व्हाई week after week after week I keep on sharing about success stories from amongst us। I don't share success stories about what's happening in the world, वो इलन मस्क ने क्या कर दिया, वो you know from the best of business worlds की महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या कर दिया, मार्क जुकरबर्ग क्या कर रहा है। आई डोंट शेयर स्टोरीज फ्रॉम देयर बिकॉज वो अवेलेबल है, और वो आप पढ़ सकते हो न्यूज में, वो आपको कहीं ना कोई बता देगा, लेकिन हम उससे इंस्पायर नहीं होते। कभी भी आप देखो इस बात को कि वी नेवर गेट इंस्पायर्ड बाय सच स्टोरीज। वी काइंड ऑफ से वाओ, बड़ा अच्छा यार, इसने ऐसा कर दिया, अच्छा ये अभी मार्स में जाने की बात कर रहा है, वाओ। एंड वी से हाँ इंस्पिरेशनल है, बट इट डजंट इफेक्ट अस बिकॉज हमें क्या लगता है, यार ये तो ऑलरेडी इतना आगे है कि हम तो वहां कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इट डजंट काइंड ऑफ मेक अस एंकर आवरसेल्व्स देयर। तो हम कभी भी उस पर एंकरिंग नहीं करते, हम अपना कभी भी कांटा वहां नहीं डालते, बिकॉज हमें लगता है यार ये तो इलॉन मस्क तो बहुत आगे निकल चुका है। यू नो ये वेदर बी एनी ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड स्टोरीज, ये तो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो चाहे चाहे हम नारायण मूर्ति की बात कर लें, चाहे हम रतन टाटा की बात कर लें, तो हमें लगता है ये दे हैव अराइव्ड। तो सुनने में अच्छा लगता है, बट उसका हमारी लाइफ पे ज्यादा असर नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप वेयर वी आर एंड वेयर दे आर। लेकिन कोई हमारे आसपास का है, जो हमारे साथ हमने इसको देखा है, या फिर हम हमारा उससे कनेक्ट है, या हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं, जब हम वो स्टोरी सुनते हैं, इट इज अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और हमारे अंदर एक उमंग जागती है, हमारे अंदर एक उम्मीद जागती है कि हम भी 2 कदम आगे बढ़ाएं, हम भी 2 कदम आगे लें, हम भी अपने आप को थोड़ा पुश करें। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। वही तो प्रेरणा है। वो प्रेरणा नहीं है कि हम सुन के हमें अच्छा लगता है और हम कुछ नहीं करते। प्रेरणा वो है जो हमें अंदर से झंझोरती है, हमें अंदर से कहीं एक एक उम्मीद की किरण को वो जला के रखती है, और कहीं हमें सुबह उठने पे मजबूर करती है, हमें कहीं अपने काम में, अपने बिजनेस में अच्छा काम करने के लिए मजबूर करती है। दैट इज व्हाट इज इंस्पिरेशन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई शेयर सक्सेस स्टोरीज। और मैं चाहता हूं कि ये सक्सेस स्टोरीज आप सुन के, आप प्रेरित होकर आप अपनी लाइफ अच्छी करें, और आपकी स्टोरी बने, फिर आप मुझे शेयर करें, या फिर अपने आसपास के लोगों को शेयर करें, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो। और उनको तो शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तो आपको देख रहे हैं। एंड देन यू विल रियलाइज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ भी एक 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 इंस्पिरेशन बन जाएगी किसी ना किसी के लिए। और मुझे लगता है कि मरने से पहले यार इतना तो करना चाहिए हम लोग, कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए, कम से कम एक जान के लिए तो हम एक इंस्पिरेशन बन के जाए। और ऐसा मुझे लगता है कि हम सब बहुत सारी जानों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन के जा सकते हैं, क्योंकि जाना तो है। एक दिन यहाँ से एग्जिट तो मारनी है, एक दिन स्टोरी का एंड तो होना है, एक दिन किताब तो बंद होनी है। तो वो किताब बंद होते होते क्या कुछ लोगों को लगेगा, या लगना चाहिए कि यार दिस बुक वाज वर्थ इट, ये किताब पढ़ के मजा आया, आनंद आया, इस किताब को पढ़ के ऐसा लगता है कि हम भी अपनी किताब लिखें। आई थिंक द बेस्ट compliment for an author would be that reading a book made me feel so great that I will live my life in such a way
that I will also write my book, which will also inspire others. So एक inspiration किसी को इतना inspire करती है कि वो कहता है कि मैं भी किसी के लिए inspiration बनूंगा, और फिर ये chain बढ़ती जाती है, बनती जाती है. And that's what humanity is all about. That we can be a source of motivation, we can be a source of inspiration for someone around. And that's the reason why I take Happy Minds. कि लगातार ये 24-25 साल से हैप्पी माइंड्स हो रहे हैं, लगातार ऐसे हर हफ्ते एक हो रहा है, 1100 से हम आगे बढ़ गए. ये क्यों है? It's not that there is a lot of money pouring in. It's not that किसी ने मुझे कंपल्शन किया है या किसी ने बोला कि अगर नहीं किया, मोदी जी ने बोला अगर तुमने अचीव नहीं लिया तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा. It's not this. It is the kick which you get when you are able to inspire some souls through your life, through your words, through your sharing. And I feel the reason I share, or the reason I'm here for Happy Minds, उसका सबसे बड़ा कारण है कि क्या मेरी लाइफ किसी के लिए इंस्पिरेशन का जरिया बन सकती है? क्या किसी की लाइफ एक लेवल पे जो वो जी रहे हैं उससे ऊपर उठ सकती है? एंड लेट मी टेल यू दिस, कि अगर ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी की लाइफ अच्छी होती है आपकी वजह से, उससे बढ़िया सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपके लिए खुद के लिए कुछ नहीं है. एंड दैट बिकम्स वन नॉच. जो बोलता हूं 5 लेवल्स ऑफ इंस्पिरेशन, उसमें से एक लेवल ऑफ इंस्पिरेशन ये होता है कि व्हेन यू गेट इंस्पायर्ड लिसनिंग टू हाउ पीपल हैव ग्रोन बिकॉज ऑफ योर लाइफ, वो लेवल का इंस्पिरेशन अलग होता है. तो आज की कुछ स्टोरीज हैं जो लेट मी शेयर विद यू, एंड दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज, शॉर्ट एंड स्वीट, ऑफ हाउ पीपल हैव गॉन अहेड इन देयर लाइव्स. तो एक मुझे फोन आया, I think somewhere on Monday or Tuesday, I got a call from one of my students, Saurabh Gupta. Now, Saurabh is from Aurangabad, and he was with me when he was studying in Pune, I think in 2004 or 5. शायद कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी आपके बैच में से होंगे, 2004-5 के बैच में से. And he was doing his college here, and after that he left for his hometown 2007-8 में, and he was with me for my life and my other programs. एक दो प्रोग्राम और आया था. बट उसकी खासियत थी सौरभ की कि सौरभ ने मेरे से कनेक्शन नहीं छोड़ा. वो चले गए औरंगाबाद, लेकिन he was in touch in some way or the other. कभी भी आता था पुणे, he would come and meet me, and I happened to visit Aurangabad a few times, and I ensured that I call on him and I meet him. तो एक रिलेशन उसने अपनी तरफ से बना के रखा, मेरी तरफ से भी रिश्ता बना रहा. क्या कुछ नहीं किसी के लिए, बट एक कनेक्शन बना रहा. तो मुझे वो he was there last year in my life. He came, I think he's done it 2-3 times. So बहुत साल हो गए. इसने कहा कि सर मैं आपके साथ नहीं रहा हूँ, let me stay with you for a week. And then जो उनको मालूम नहीं है, my life is a yearly program which I take in Uttarakhand, and it's kind of a week together with some wonderful people, and we come back. I can't explain what my life is all about, but it's a beautiful experience. तो वो करके आया, and he shared with me some things in my life. उसका मैंने कुछ उसको answers दिए, कुछ solutions दिए उसको. And then he calls me on Monday, and he says, "Sir, I want to share with you that मैंने अपना पहला project चालू किया है, and this project is a solo project, which he's into construction. So he was working with somebody, he was in partnership with somebody, and things like that. So he asked me a few questions, which I gave him clarity about. And he says, आप कब क्या बोलते हैं और कहाँ हिट हो जाता है, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा एक सोलो प्रोजेक्ट निकालूंगा. एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स हियर इन कमिंग अप इन औरंगाबाद, एंड मेरी लाइफ का तो खैर बहुत बड़ा ही है. एंड ही सेज योर ब्लेसिंग्स दैट दिस इज हैपनिंग, and along with running a school, now I'm into this business. So he was so gung-ho that his life has taken off in a different direction. And the rut which he was in, एक complications थे उसके partnership में, उससे निकल के बाहर आके, and he says कैसे funds आ गए मालूम नहीं पड़ा, कैसे ये सब होते गया पिछले 6 महीने में. And I think that very moment when I got clarity from you, वहीं से उसकी एक शुरुआत हो गई. And a lot of things he shared, but then just want to share this with you that he's started his new project there. I got a message from Sonal Borhade, second success story. It's not a success story, but it's a beautiful sharing. And she is going through a tough time in her business, along of course with the husband and other family members. A lot of attrition challenges, a lot of people, challenges कि लोग अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं. Typical challenges of an organization, but उनकी industry में थोड़ा ज़्यादा है because थोड़ा सा technicality आ जाती है. And she says, kind of on the verge of giving up. But then I remember you saying it, that enterprise बनाना, एक साम्राज्य बनाना कोई आसान बात नहीं है. It's not for the faint-hearted.
आपकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है. And then I see your pose which you always give, the pose which you say कि कब तक करते रहने का है, जब तक है जान. And she says कि वो sentence ऐसा मन में बैठा है कि यार ये साम्राज्य बनाना है ना, तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा. And then she says, I on the verge of giving up, I bounce back. And I feel that ये इतनी छोटी सी बात है ना, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है. छोटी सी बात है कि somebody's words inspire you to stay afloat, लेकिन उसका इम्पैक्ट जबरदस्त होता है. So this is a beautiful story. उससे बढ़िया एक और स्टोरी है of Dr. Nikhil Burate. This is one of my favorite stories. Dr. Nikhil, he joined me somewhere, I think 2013-14, and he had come from Australia after doing his masters or whatever in medicine, and his parents are one of the best known child specialists in the area of PCMC and that place. If you're from Pune, you would know that, Dr. Gurute. And he also joined his parents, as his wife was also a doctor, he also is a doctor. So चारों लोग ने मिलके ये अपना they are taking their profession ahead. And then he happened to join my business program, and I said, "You're a doctor, why you want to join?" He says, "I've come from Australia and I've learned how to manage a clinic and things like that along with my medicine. But मुझे लगता है कि इसको और अच्छा करना चाहिए." I said, "Wow, this is wonderful." ये सोच कि आपने अपने प्रोफेशन को एक बिजनेस के रूप में देखना है, and you can make it a bit more organized, is so wonderful. He was overweight. He was kind of lethargy, and होता है typical, एक पेट निकला हुआ है, आदमी चल रहा है, typical doctor एक स्टेज हो जाती है. So I said, "Hello, you're a doctor, you're supposed to inspire people to be healthy. ये क्या चल रहा है?" तो ऐसा मैंने 2014-15 में डॉक्टर निखिल को ये टॉन्ट मारा, कमेंट मारा, and whenever we would meet, I would always tell this. But come 2021, he sent me a picture of his slim, absolutely slim. And recently he sent me a picture where he's got a six-pack body, and he's got biceps and all. It's an awesome transformation. And then just 3-4 days back, he sent me a snapshot and he says, "MJ sir, ये आपकी वजह से हुआ. I'm taking now workshops for doctors across the city of Pune, and I'm sharing with them the importance of aging gracefully." And he says, "I never thought that I would be able to contribute in this area, and especially for doctors, जिनका पूरा दिन भर time कैसे निकलता है मालूम नहीं. But I want them to age gracefully." And this workshop has done wonders. And it was such an inspiring, it's a long note which he sent, but it's an inspiring story that such transformation happened. So that is, I got inspired. I said, "मुझे भी कुछ करना चाहिए." The way he is taking care of his body, and the way he's inspiring the world to take care of the body. तो कौन सी चीज कहाँ जाती है मालूम नहीं पड़ता. बोलते ना, you throw a stone in a pond and you don't know how far the ripples will go. In the same way, अगर आप किसी को inspire करते हो, you don't know how far that inspiration will go. तो बड़ा जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को अच्छा जिए. आप जो भी कर रहे हैं, you might be working in a company, you might be doing business, you might be a homemaker, you might be a youngster going to college. It is important that you live your life well to the best of your ability, क्योंकि कोई ना कोई आपसे इंस्पायर हो सकता है. कोई ना कोई तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई ना कोई तो आपको देख रहा है, और कहां से आपसे इंस्पिरेशन लेके वो क्या कुछ कर गुजरेगा, ये आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. And that's what I've understood the last 25 years of my life, of my career in this field. कि कहां से कैसे कैसे लोगों ने क्या पिकअप किया. Now, I'm not into physical fitness. मेरा तो काम है, I'm into business, I'm into consultancy, I'm into coaching, mentoring, but I'm not into physical training, fitness. लेकिन मेरी कौन सी बात को उसने उठा लिया और किस लेवल पे लेके गए, कि मैं तो सिर्फ फिटनेस की बात करता हूँ कि यार stay fit. He took it to another level where he says, "Can I inspire many more from my profession?" तो अच्छे काम करते रहिए, अच्छा बने रहिए, मालूम नहीं कौन कैसा किस लेवल पे आपके साथ आपकी बातों को ले जाएगा. Another success story is from Ankit Kanchal, and he messaged that he says, "Sir, I'm pleased to share that we have been selected amongst the top 20 renewable environment companies of India." So amongst the top 20 companies, mein unka naam aaya, and he says, "I thought of sharing this good news with you."
And I said, wow, when I got this message, I said, this is so inspiring that you see your name. This means you're doing something great. So congratulations to you, Ankit, and keep on doing the great work. I'm sure very soon you'll be amongst the top 3 and top 4, and maybe I'm not far away when you will be the number 1 in the country. Another is from Hemant Gawande. He says, Namaste, sir. While reading my notes from the Life 360 batch of 2013, a flood of memories came across, and I realized how many valuable lessons I learned from you. And it's an important lesson that you should keep on revising, keep on going back to your notes and to your diary. Thank you for making my life better. Just an inspirational note for me. And the last note is from Ram Fuge, and he says, sir, we have launched Mangalam Life Park. It's a 1,000 flat scheme. And on the launch day, we have opened around 600 flats, and we have sold 406 in just 5 hours. And the mind went back to how this whole thing started, because I know Mangalam from since inception. He says success and failure doesn't matter a lot because it's part and parcel of life. But we got a vision and passion because of you. And more important thing is, you gave a company of a same thought process friends to us, which we would never get anywhere. Thank you so much. And thank you for making us what we have become. And the last story is from Samir Pathare. He messaged yesterday, sir, with great pleasure and pride, I want to inform you that we have become a 100 crore company. We crossed that turnover yesterday. Thank you for showing me the path of success and always to achieve it. It wouldn't be possible without your mentorship and coaching and love. Wow. I have all these stories, and trust me, kal raat to aisa inspired hoke soya, because you're seeing all these stories of your students, and they're doing well in different aspects. And that's why I said, जितने लोगों तक मैं पहुंच जाऊं, जितने लोगों तक मैं ये संदेश दे पाऊं कि यार लेट्स लिव अ बेटर लाइफ, बिकॉज एक जीने का तरीका है और एक जीने का अच्छा तरीका है, और जितना अच्छा तरीके में जाएंगे ना, उतना हमें फिर मिलते जाएगा, उतना हमारे साथ कुछ अच्छा होते जाएगा. अगर हमने अपने जीने के तरीके को, the way we are living a life, if we do not live that well, if we don't do that well, तो फिर अच्छा कैसे होगा? And that's the reason I want as many people as possible. I remember some a month or 2 months back, we had Nimish Desai, one of again, he's one of my students. He came senior matlab age wise elder to me, and he messaged me, कहाँ हैं आप? तो मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ, आपसे मिलना है. मैंने कहा ठीक है. And then I gave him time and he came. And the moment he entered my cabin, he first went down and touched my feet. I said, क्या कर रहे हो यार, पाप लगाओगे? He says, नहीं, आपके पैर छूने. And then he hugged me and he says, and I just want to share this with you, because sometimes you're also, you want to listen certain things. He says, I just came back from Mumbai after listening to one of, I would not name the person about whom he was talking. He says, I came back after listening to one of the world's most known speaker and author. And I've been reading his book about getting up in the morning at 5 and things like that. And अच्छा बोलते हैं वो. लेकिन वहां मैं बैठे बैठे जब उनको सुन रहा था 2 घंटा, तो मुझे लगा कि आप कितने सरलता से वही चीज बता देते हो. In such simple ways you make us understand, and what we have got from you the last 7-8 years is so much. तो मुझे वो रियलाइज हुआ वहां बैठे बैठे. तो मुझे जब लगा कि जब मैं वापस आ रहा था पुणे को, तो मुझे लगा नहीं, सबसे पहले आपको मिलना है और आपको ये बताना है, आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि the way you have given us so much is so wonderful. I said, come on, how bolo yaar, let me listen more of this. So because he's just come back listening to one of the world's best, and he says, not that I'm comparing myself there, but I'm just saying that कि कितना जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप जो करते हो उसकी विजिबिलिटी अगर बढ़ती है, जो आप करते हो अगर आपकी रीच बढ़ती है, so many lives can change, so many people can benefit. And that's why I said, let's make Happy Minds reach out to as many people as possible. So thank you all, जिन्होंने भी story share करी, कि for giving us this dose of inspiration that you're doing well in your business, you're doing well in your personal lives, you are being a source of inspiration for somebody. तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत thank you and बड़ा thank you, and all of you जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कुछ लाइफ में बढ़िया करिए, so that you become a source of inspiration, and your story is there, which you can share with me, and I will share with the world. Trust me, what magic we all can do
even the biggest of guys cannot do, because we have a huge area to cover, right? And जैसे मैंने बोला कि बड़े लोगों की कहानियां सुन के हम इंस्पायर नहीं होते, हमें अच्छा लगता है, बट वी डोंट गेट इंस्पायर्ड। लेकिन हमारे आसपास के लोग जब अच्छा काम कर लेते हैं, वी रियली गेट इंस्पायर्ड। तो हमें काम अच्छा करने की बड़ी सख्त जरूरत है। So lovely stories. Rishi says, "Wow, great! Thank you, Rishi." But in fact, thanks to everybody who shared their stories. Naren says, "I agree with this 100%. Your talks are simple and directly for us, implementable." Wow, thank you so much. चलो आज के उसमें आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ हो? हाँ जी। तो मैंने लास्ट एचएम में शेयर किया था about this very fact that there are two kinds of people in the world. Two kinds of people in the world, and one is PPW and one is DPW. So PPW होता है somebody who's passionate. So we say passionate person working or passionate people working. And DPW हमने बोला था dead people working. और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये दोनों प्रजाति, ये दोनों स्पीशीज जो है, ये हर जगह पाई जाती है. So you go to a restaurant, you will have a passionate person working. You go to a restaurant, you will find a dead person working. You go to a company, a factory, you will find somebody who's passionate who's working there. You go to a factory, you will find some dead person working. You go to a government office, a passionate person, you will find a dead person working there. So आप कहीं भी जाओ, कहीं किसी भी एरिया में जाओ, आपको ये दोनों वैरायटी मिलेगी. And no prizes for guessing कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, कौन सी स्पीशीज अच्छी है. So how do people who are passionate people, how do they behave? What makes them passionate? What is the quality which they hold? ये मैंने लास्ट आपसे शेयर करी थी of one of the qualities. कि ये passionate जो लोग होते हैं, they have a glow on their face. They kind of get engaged in the work which they're doing. They have lightness in their feet. They kind of make the work lovable for many. वो ना सिर्फ उस काम को खुद प्यार करते हैं, बट वो औरों के लिए भी उसको प्यार के लायक बना देते हैं. दे काइंड ऑफ उस वर्क को वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं. उस काम को मारते नहीं है, उस काम को वो जबरदस्ती कैसे भी करके खाना पूर्ति नहीं करते. दे काइंड ऑफ एड ऑन टू दैट वर्क. दे काइंड ऑफ फाइंड वेज बाय विच दे कैन मेक दैट जॉब बेटर. तो ये पैशनेट लोगों की काबिलियत होती है. वेयरएज जो डेड पीपल होते हैं, वो अच्छे बने बनाए काम को भी नॉर्मल कर देते हैं, साधारण कर देते हैं. उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो बहुत दूर की बात है, उसको पूरा कर लें वो भी बहुत बड़ी बात. दे आर द वंस हु विल काइंड ऑफ मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल अराउंड देम. क्योंकि आसपास के लोग हैं, उनके लिए भी वो काम मुश्किल हो जाता है जाने अनजाने में, बिकॉज दे काइंड ऑफ डेड इन देयर एंटायर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. तो ये हमने दो तरह के लोगों की बात करी. फिर मैंने आपसे एक बात करी थी, जिन्होंने ये मिस किया है, आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू गो टू द एमजी एकेडमी. हमारी एकेडमी है, आप उसमें जाइए और यू कैन सी द वीडियो ऑफ लास्ट ऑल द एचएम्स. So the MG Academy के नाम से हमारी एकेडमी है. You can go and subscribe there. And आपको पिछले कई 1-2 साल के आपको वीडियोस, ऐसे 50-100 वीडियोस आपको हैप्पी माइंड्स के मिल जाएंगे वहां पर. Just watch them and see all the sessions which are there. तो coming back, तो मैंने बात करी थी कि one thing which these passionate people have is, the one quality which they have is that they are able to connect with the higher. हर सिचुएशन में एक आप जहां होते हैं, एक लोअर लेवल होता है, एक हायर लेवल होता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, यू गोइंग आउट फॉर डिनर विद योर फैमिली एंड आप गए खाना खाने और शायद खाना अच्छा नहीं था, या शायद सर्विस अच्छी नहीं थी, शायद कुछ खाने में प्रॉब्लम हो गई. नाउ गेटिंग स्टक विद दैट सिचुएशन कि यार खाना बेकार है, हम तो खाना खाने आए थे, बिल्कुल बेकार खाना दिया. तो दिस इज वन सिचुएशन वेयर वी टॉकिंग अबाउट द लोअर सिचुएशन. इसके ऊपर एक सिचुएशन है कि मैं आया क्यों था. अरे मैं तो आया था फैमिली के साथ समय बिताने के लिए, मैं तो आया था कुछ अच्छा गुड टाइम्स के लिए, मैं तो आया था कुछ यादें बनाने के लिए, मैं तो आया था कि दिस इवनिंग रिमेन्स विद अस फॉर लाइफ. तो ये खाना तो एक इट्स अ स्मॉल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इवनिंग. दिस इज नॉट द इवनिंग. तो जो पैशनेट पीपल वर्किंग में होते हैं, पीपीडब्ल्यू होते हैं, दे एंकर देमसेल्व्स टू द हायर, टू द बिगर, एंड द बिगर इज दैट इवनिंग. एंड चल छोड़ ना, खाना बेकार था, कम से कम हम साथ तो हैं. एंड उस चक्कर में कुछ अलग हो जाता है. यू काइंड ऑफ go through that phase without spoiling the mood of everybody. Right? So passionate people working, they find
things around them at a higher level and they connect. So organization में है, so they might not have a great connect with somebody, किसी से बनती नहीं होगी शायद जो उनके साथ काम करता है, but they connect to the bigger कि यार ये डिपार्टमेंट में तो काम अच्छा होना चाहिए. They connect to the bigger, यार कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए. Right? So they चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो कि यार मेरा इस पार्टी से बनता नहीं है, मेरा इस नेता से बनता नहीं है, बट आई कनेक्ट विद द नेशन. यार मैं देश के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा जस्ट बिकॉज आई डिसलाइक दिस पर्सन, जस्ट बिकॉज मेरा इस इंसान से बनता नहीं है. आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट द नेशन. तो पैशनेट पीपल जो है दे कनेक्ट विद द हायर. डेड पीपल, राइट, दे ऑलवेज कनेक्ट विद द लोअर. वो अपने आप को ऊपर करने के लिए दे विल डू एवरीथिंग, इवन इफ इट मीन्स कंपनी को गिरा देंगे, इवन इट मीन्स कि देश को गिरा देंगे, इवन इफ इट मीन्स कि फैमिली में किसी को गिरा देंगे, लेकिन उनका ऊपर उठना चाहिए. इट्स अ क्वालिटी ऑफ डेड पीपल वर्क. सो वी गोट टू आस्क आवरसेल्व्स टाइम एंड अगेन कि हमारे आसपास जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में लोअर भी है और हायर भी है. आर वी कनेक्टिंग टू द हायर? मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, 2016 मुझे याद है, वी वर ऑन अ वे टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग निकले. तो हमने यहाँ पर एक पुणे में एक सेंड ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज किया. एंड सिंस 220 लोग थे जिनको हम लेके जा रहे थे फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड, इट्स अ बिग ह्यूज इवेंट एंड एवरीबॉडी वाज काइंड ऑफ गंग हो फॉर द इवेंट. तो उसमें हमारे एक पार्टनर थे जिन्होंने स्कूबा का जो टेक्निकल साइड है वो उन्होंने किया हुआ था. एंड दे कॉल्ड ऑन माय टीम एंड दे सेड कोई जो सेंड ऑफ पार्टी है, सेंड ऑफ पार्टी नहीं, सेंड ऑफ इवेंट है, उसमें हम इंस्ट्रक्शंस देंगे अबाउट व्हाट दे हैव टू टेक केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ द स्कूबा एक्टिविटी. तो हमने कहा दैट्स अ मस्ट. आपने बताना है कि भाई क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, बिकॉज वी गोइंग टू अ फॉरेन लैंड एंड सबके लिए नया है, सबके लिए स्कूबा इवेंट जो है एकदम फर्स्ट टाइम हो रहा है. तो वी सेड पूरा इवेंट आपके लिए है. एंड दे सेड एमजी सर को बोलना कि लास्ट में वो भी कुछ बात करें सो दैट इट काइंड ऑफ एंड्स अप. आई सेड ठीक है, मैं भी बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं. Then they also propose कि we will get t-shirts and we will give t-shirts to everybody. इसमें हमारी कंपनी का, उनकी कंपनी का लोगो वगैरह रहेगा. तो we said ठीक है, दो ना, anything which is coming is good enough for us. तो ऐसा करके वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ. एंड I reached the venue and I saw that a lot of people were already inside and some were coming in. तो मुझे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि सर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. मैंने कहा क्या हो गया है? Is everything okay inside? ना नहीं, हॉल ठीक है, सब कुछ ठीक है. ये स्कूबा वाले जो है इन्होंने टी शर्ट्स लाई थी. हाँ, मैंने कहा वो कह रहे थे हम टी शर्ट्स देंगे. कहते सर वो एक्चुअली सॉइल आई टी शर्ट्स और यहाँ तो 220 लोग हैं और आधे लोगों को टी शर्ट नहीं मिली है. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है. मतलब इट वाज नॉट प्रॉमिस्ड, इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी देयर. ये तो ऐड ऑन है, किसी को मालूम भी नहीं था कि टी शर्ट मिलने वाली है. वो तो उसने लाई और उसने दे दी. अब उसकी भी गलती है, उसको अकल होनी चाहिए कि उसने 220 लानी थी, 220 क्यों नहीं लेके आया. बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट्स गो. नहीं सर, बहुत से लोगों को बुरा लग गया है एंड कि हमें टी शर्ट नहीं मिली. अच्छा, वी हैव टू गो फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. एंड हियर वो 100 रुपए की टी शर्ट के लिए लोगों का सिस्टम उड़ा हुआ है. अरे लाखों रुपए खर्च किया है तुमने वो टिकट्स के लिए, वहां जाने के लिए, एंड यहाँ 100 रुपए की टी शर्ट के लिए आपका सिस्टम उड़ गया है. एंड आई सेड दिस इज, we are leaving for that world record tomorrow morning. and ये अभी ये आज के दिन ये क्या मूड खराब करके बैठे हुए. बट वो हो गया, सबका सिस्टम उड़ा हुआ है. तो मैं अंदर गया जब हॉल के अंदर, तो आई कुड सेंस दैट वो वाइब आपको फील होता है ना कि पीपल आर नॉट हैप्पी एंड पीपल आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. तो एक होता है ना कि हाउ कैन वी बी ट्रीटेड लाइक दिस. अच्छा, उनको नहीं मालूम कि ये स्कूबा वालों का इवेंट है. उनको लगा साहब एमजी सर ने जो है हमें टी शर्ट नहीं दिया है. ये एक और गोली लगी मुझे. मैंने कहा मैं बीच में कहां से आ गया. बट एनीवेज मैं स्टेज में गया एंड आई सेड आई केम टू नो दैट सम ऑफ यू हैव नॉट गॉट द टी-शर्ट्स. तो उसमें से कुछ लोगों के ऐसे चेहरे से हाँ मतलब वी आर द वंस जिनको नहीं मिली है. आई सेड यार कहां अटक रहे हो यार तुम लोग. एंड आई शेयर्ड विद देम कि लाइफ में छोटी बातों में अटकना बंद करो यार. हम कहां जा रहे हैं, हम वो जाने से चूक जाते हैं बिकॉज हम कहां छोटी बात में अटके हुए हैं. एंड लाइफ विल ऑलवेज गिव यू दीज टू ऑप्शंस कि आपके सामने एक बड़ी बात होगी, एक छोटी बात होगी. तो आपको कहां अटकना है ये आपको डिसाइड करना है. जैसे तुम्हें वो 100 रुपए की टी शर्ट पे अटकना है या तुम्हें वो लाखों रुपए का जो इवेंट में जा रहे हैं जहां हमने करोड़ों रुपए खर्च किया टुगेदर,
एंड वो सर्टिफिकेट जो हम लेके आएंगे, जो हमारे वॉल पे लगेगा फॉर द रेस्ट ऑफ अ लाइफ, अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट. डू यू वांट टू गेट स्टक देयर और डू यू वांट टू गेट स्टक विद 100 रुपी टी-शर्ट? टेल मी. वो 15-20 मिनट लगे मुझे पूरे हॉल को वापस जगाने में. एंड दे ऑल सेड, हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वी विल नॉट गेट स्टक विद द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. छोटी बात को छोटा रहने दो ना, क्यों छोटी बात को बड़ा करते हो? ऐसा मैंने उनको बताया. एंड दे ऑल वर गंग हो. एंड मैंने मजाक मजाक में कह दिया लोगों को कि यार हमने बाहर नाश्ते का इंतजाम भी किया तुम लोगों के लिए. अगेन इट वाज नॉट प्रॉमिस्ड, बट वी केप्ट डोसा काउंटर फॉर ऑल ऑफ यू. डोसा खा के जाना. एंड दे ऑल सेड, वाओ दिस इज नाइस. एंड आई आल्सो सेड, मजाक में मैंने ये भी बोल दिया कि अगर डोसा वाला नहीं मिलेगा या डोसा नहीं मिलेगा तुम्हें, अगर भीड़ बहुत होगी तो बुरा नहीं मानना, चले जाना, डोसा खाने नहीं आए थे, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आए थे. तो उसमें भी लोगों ने बड़ा हंसे, ताली बज गई. एंड हुआ क्या कि जब बाहर गए ये लोग, 220 लोग बाहर गए, तो मालूम पड़ा वो डोसा बनाने वाला आइटम वो गायब है. वो पता नहीं कहाँ चाय पीने, बीड़ी पीने कहाँ चले गया. तो जो मैं कह रहा था वो बात सच हो गई. एंड द मोमेंट आई केम, कहा है डोसा वाला? कह रहे सर वो तो गायब है, उसका सब सामान पड़ा हुआ है. एंड मैंने ऐसे हाथ स्लीव्स पूरे किए, मैं डोसा काउंटर के पीछे गया. मैं कहा चलो लेट्स मेक डोसास. एंड आई स्टार्टेड मेकिंग डोसा फॉर एवरीबॉडी. मैं कहा छोटी बात में अटकोगे कि वो आया नहीं है, बड़ी बात क्या है, तुम्हें नाश्ता कराता हूँ, चलो आ जाओ. एंड ऐसा करके वो जितने भी लोग थे, वी हैड अ ग्रेट टाइम. बाय टाइम द डोसा गाय आल्सो केम इन. तो लाइफ में आपके सामने ना दोनों मौके होते हैं. आप छोटों में भटक सकते हो, बड़ों में भटक सकते हो. और कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि लेट्स गेट स्टक इन द बिगर थिंग्स ना. अटकना तो है यार, अटकना तो है. अभी 10-12 दिन पहले होली दहन था. तो हम लोग पूरा विद फैमिली हम लोग गए होली दहन में. तो होली का दहन चालू था. एंड जैसे ही हम मंदिर, वो जहां पर वो ग्राउंड था जहां पर होली दहन हो रहा था, हम चढ़ रहे थे, थोड़ी भीड़ सी थी. तो बाहर रोड में पार्किंग, लोगों ने गाड़ी खड़ी करी थी और हम रोड से जा रहे थे टुवर्ड्स दिस ग्राउंड जहां पर मैं, बाबूजी एंड माँ एंड रचना, बच्चे सब जा रहे थे. तो तभी एक गाड़ी ने, एक कार जो है उसने ऐसा टर्न मारा और उस ग्राउंड की ओर वो बढ़ने लगी. एंड आई वाज वंडरिंग कि अंदर पार्किंग नहीं है या होगी तो कहाँ भीड़ में ले जा रहा है गाड़ी को, ऐसा मेरे मन में, लेकिन उसकी गाड़ी वो ले जा रहा है. तो उसने जो टर्न मारा उसमें बाबूजी का पैर आ गया टायर के. तो पैर मतलब उनकी चप्पल फंस गई. जस्ट 0.1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बचा, नहीं तो उनके पैर के ऊपर गाड़ी आ गई और उनकी चप्पल जो है वो टायर के नीचे आ गई. सो ही काइंड ऑफ, उस गाड़ी को उन्होंने नॉक किया कि भाई क्या कर रहा है. एंड आई सॉ इट एंड आई वाज काइंड ऑफ वरिड कि यार इनका पैर तो नहीं आ गया. एंड देन आई सॉ द ड्राइवर इनसाइड द कार. उसने ऐसा जेस्चर बनाया कि क्या है मतलब, तुम क्यों उधर खड़े हो, मैं अंदर गाड़ी ले आ रहा हूं. तो उसने गाड़ी चढ़ा दी चप्पल के ऊपर और वो अंदर से इशारा कर रहा है कि तुम गलत जगह खड़े हो एंड भीड़ है. आई गॉट अ बिट अपसेट. आई काइंड ऑफ आई सेड नहीं नहीं ये नहीं चलेगा. मैं गया गाड़ी घूम के और वो गाड़ी जहां ड्राइवर था, मैंने शीशे में जोर से नॉक किया. मैं नीचे कर, एंड देन आई गिव हिम माय पीस ऑफ माइंड. एज इट इज नॉट डन. यू हैव अ सीनियर सिटीजन देयर. तुमने उसके लगभग उसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दी. इमेजिन करो अगर पैर पे गाड़ी चढ़ती तो क्या होता. एंड देन यू आर बिहेविंग लाइक दिस. मैंने उसको वो आधे 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर उसको मैंने अपने मन की बात वॉमिट कर दिया. एंड आई तो वो आगे निकल गया. हम अपना होली दहन में चले. बट समवेयर वो होली का दहन चल रही थी एंड हम लोग राउंड ले रहे थे. तो मेरे मन में रहा यार, नहीं यार आज तो होली है, होली में तो गले लगाते हैं लोगों को, आज मैंने इसको डांट दिया यार, अच्छा नहीं है ये, दिस इज नॉट गुड. एंड मेरी आंखें उसको ढूंढ रही थी कि वो किधर है, किधर है. मिलेगा तो उसको जाके हक करूंगा एंड आई विल टेल हिम हैप्पी होली, चल भूल चूक माफ, चल एंजॉय कर. मुझे भी लगा उसका मूड खराब हो गया है और आई ऑन सच अ फेस्टिव डे आई शुड नॉट स्पॉइल हिज मूड. चलो उसकी गलती थी, मैंने डांट दिया, लेकिन अभी नॉर्मल कर देता हूं. तो वो मिला नहीं मुझे. ही वाज यंगस्टर, होगा 20s में, मे बी अर्ली 20s लेट 20s ऐसा. तो वो मुझे दिखा नहीं. एनीवेज हम लोग होली दहन करके बाहर निकले. तो एक थोड़ी दूर में एक गणपति मंदिर है एंड वी वेंट टू द टेम्पल. और मैं ऐसे हाथ जोड़ के, मैं ऐसा मंदिर से पीछे मुड़ा तो देखा कि ही वाज सिटिंग विद हिज वाइफ एंड मे बी हिज मदर. तो वो पैराफिट में वो बैठा हुआ था. तो मुझे लगा देखो भगवान ने भी सोचा कि यार इसके दिल में इतनी इच्छा है कि इसको, उसको न्यूट्रल करना है, सिचुएशन को एकदम साफ करना है. तो भगवान ने भी मौका दिया और वो आके वो भी मंदिर में वहीं बैठा जहां पर हम थे. तो मैं उसके पास गया एंड आई सेड हे यू आर द वन, जो गाड़ी में भी मेरी बात हुई थी. तो he looked at me and I knew he was the one, but I wanted to him to know कि मैं वही हूँ जिसने तेरे को झाड़ा था.
I said I was there and तो उसने देखा नहीं, मैंने कहा come give me a hug. वो उठा, उसको तो मैंने बोला give me a hug, वो उठा and very cold. उसने हग भी ढंग से नहीं किया, उसने मुझे मतलब ऐसा मेरे मेरे पूरे उस जेस्चर को रिस्पॉन्स नहीं दिया, एंड लाइक अ कोल्ड पर्सन ही वाज देयर. ना ही उसकी वाइफ और ना ही उसकी मदर किसी ने ऐसा एक्नॉलेज किया कि मैं आया और मैंने उसको हक किया. और मैंने बोला उसको इट्स ओके, होली है, चल भूल चूक माफ, आई वांट यू टू एंजॉय एंड बी रिलैक्स्ड ऑन दैट फ्रंट, कि मेरे दिल में कुछ नहीं है तेरे लिए, तो डोंट वरी. ऐसा मैं उसको बोला, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं. Now, at that moment, I had the lower and the higher. The lower was, एक तो देख मैं इसको नॉर्मल करना है, गलती इसकी है, राइट, इसने मेरे से माफी मांगनी चाहिए, इसने एक बार भी सॉरी नहीं बोला, उस समय भी नहीं बोला, अभी भी नहीं बोल रहा है, मैं इसको आ रहा हूँ मिलने के लिए कि चल छोड़ना यार, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इसको फिर भी नहीं पड़ी है, फिर भी ये नहीं सॉरी बोल रहा है. दिस इज अ लोअर सिचुएशन. हम क्या, फिर वो होता है ना टिपिकल, हम क्या गधे हैं, वो आता है ना वीडियो कि हम गए उसके पास, हाँ, वो अरविंद केजरीवाल का आता है ना वीडियो, हम क्या गधे हैं. तो you that's a lower situation. The higher you can connect to is, yeah, I gave my peace of mind and I felt my mind was with him, let me get my mind back. तो क्या है कि I wanted to feel good, यार मैंने न्यूट्रल कर दिया, मैंने अपना एफर्ट ले लिया. What matters to me is my peace of mind, ना. And that peace of mind was not with me because I had given my peace of mind there. So what was higher? Higher was कि ठीक है, मेरे ये फेस्टिव समय में यार लोगों ने घर अच्छे मूड से जाना चाहिए, ऐसा मेरे लिए वो हायर था और मैंने वो किया. And not many times, not every time it will be acknowledged. Not every time people will reciprocate. It's okay. So I want you to understand this, that passionate people, they'll always connect, hook on to the higher. They will always do that. Hello? Hello? You there or not? Passionate, happy mind seekers. Zinda ho. I like you. I'm waiting to see you in the batch, Rupesh. Huh? You're coming in the batch like 360. Good, good. Zinda raho. Passionate raho. Oh, wow. So nice of you. So nice of you. Then life will always put you in on a testing mode, ना, कि वो आपको अटकाएगी, छोटी सिचुएशन में अटकाएगी, आपको बड़ी भी देगी, आपको कहाँ अटकना है वो कहेगी भाई चलो तुम्हारे ऊपर है, अभी तुम कहाँ अटकोगे. And this is the kind of meditation. Great, lovely. मेरे साथ रहो, जागते रहो, जिंदा रहो. तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि लाइफ जो है ना हमेशा टेस्ट करती रहेगी, हमें टेस्ट करती रहेगी कि आप कहाँ अटकना चाहोगे, आप छोटी बातों में अटकना चाहोगे या बड़ी बातों में अटकना चाहोगे. तो इसलिए लाइफ दोनों सिचुएशन देती है, हमें छोटी भी देती है और बड़ी भी देती है. अब हमारे ऊपर है कि हम कहाँ अटकेंगे, और ये लाइफ ने हम पे छोड़ दिया है. उसने कहा तुझे दिमाग दिया है यार, तुझे वो चीज दी है जो किसी और स्पीशीज को नहीं दी है. तुझे सोचने की शक्ति दी है, तुझे चूज करने की शक्ति दी है, ऐसा लाइफ हमें बोलती है. तो लाइफ कहती है मैं तेरे लिए चूज नहीं करूंगी, मैं तेरे लिए नहीं सोचूंगी, मैं तो तुझे सिचुएशन दूंगी. उस सिचुएशन में तू क्या चूज करेगा ये अब तू डिसाइड कर, ये तेरे ऊपर छोड़ा हुआ है. तो मुझे लगता है कि अक्लमंदी यही है. मुश्किल होता है लेकिन अक्लमंदी यही है कि वी हैंग ऑन, वी कनेक्ट, वी एंकर ऑन to the bigger, to the higher around us always. And that is what is expected from all of us. एक और क्वालिटी है जो पैशनेट लोगों की होती है. They always make, listen to me very carefully, they always make their future bigger than their past. They always make their future bigger than the past. ये पैशनेट लोगों की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, राइट, कि कैसे वो अपने आप को, अपना फ्यूचर अच्छा बनाए, राइट. चाहे वो कुछ सीख के हो, चाहे वो कुछ प्लानिंग करके हो, चाहे वो कुछ काम करके हो. दे ऑलवेज दे से यार पास्ट जो निकल गया ना, पास्ट जो गया है मेरा अभी तक का जो पास्ट गया है, चाहे वो 50 साल का हो पास्ट, चाहे वो 20 साल का हो, 30 साल का हो, जो भी हमारा पास्ट गया, चाहे वो 1 साल का हम बात कर रहे हैं कि द लास्ट व्हिच वेंट बाय, वो इन लोगों को समझ में आता है कि द पास्ट वाज ओनली टू मेक अ प्लेटफॉर्म फॉर मी
to take a jump in the future. सुनो मेरी बात को ध्यान से, उन सबको, जितने भी पैशनेट लोग होते हैं, इनको जो पीपीडब्ल्यू होते हैं, इनको ये समझ में आता है कि द पास्ट वाज ओनली फॉर मी टू हैव अ प्लेटफॉर्म. द पास्ट वाज नॉट फॉर मी टू हैव अ ग्रेव और उसमें मैं अंदर धस जाऊं या उसमें अपना को दफना लूं. तो कुछ लोग जो डीपीडब्ल्यू होते हैं वो अपने अतीत को अपनी कब्र बना लेते हैं, उसी में बैठे रहते हैं. एंड पीपीडब्ल्यू क्या करते हैं, अपने पास्ट को कहते हैं यार ये पास्ट का मतलब क्या है, इसने मुझे यहां तक पहुंचाया ना, अभी 1 साल और निकला, इसका मतलब 1 साल मुझे और यहां ले जाएगा. तो वो कहते हैं ये पास्ट जो है मेरा, ये मेरे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए है. एंड दैट इज व्हाई दे ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक देयर फ्यूचर बिगर देन देयर पास्ट. I just signed up one of my biggest coaching assignments. And I said, जितना पास्ट में नहीं किया, अभी फ्यूचर में करेंगे यार. We just signed 2 days back. We signed a big coaching assignment, one of the biggest in a company's history. The past has to be bigger. And ये बड़ा जरूरी है समझना कि of course, thank you so much. अभी तुम लोग का चालू हो जाएगा. Congratulations. I will take it in the end. But just want to share this with you. अभी बैच आ रहा है 360. I want to make it as bigger, as powerful as I can. We have the batch coming up next week where we have so many wonderful people joining us. And नरेंद्र ने मेरे से कहा एक बार कि सर वो ड्रेसिंग एटिकेट, डाइनिंग एटिकेट के बारे में कुछ बातें करो आप. तो वो मैं एक बड़ा वर्कशॉप लेता था. One full day workshop I used to take long back, 15-20 साल पहले. Then I stopped taking the workshop. तो मैंने उसका एक मॉड्यूल इंक्लूड किया है. Just because एक रिक्वेस्ट आया HM, I said ये रिक्वेस्ट है तो I'll speak an hour or so on dressing etiquette. और मुझे लगता है मेरा थोड़ा ड्रेसिंग एटिकेट अच्छा है. And I'll speak on dining and dressing etiquette in some way. बड़ा जरूरी है कि ये हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए बड़ा जरूरी है. That how we take care of ourselves, how we conduct ourselves dressing wise, how we conduct ourselves dining etiquette wise. बेसिक्स हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है. तो कमिंग बैक टू द पीपीडब्ल्यूज, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने फ्यूचर को अपने पास से बड़ा करते हैं. I was reading about this person by the name of Afroz Shah. I don't know if you've heard of this person or not. सुना है क्या आफरोज शाह के बारे में? अभी सुना है. तुम लोग ना बड़े समझदार हो गए हो. हाँ. So Afroz Shah was kind of recognized by the United Nations. UN ने भी उनको recognize किया, उनका सम्मान किया. अब क्यों किया? 2015 में Afroz Shah was walking down the Warsaw beach. और ये ऐसा करीब 3-3.5 किलोमीटर का लंबा बीच है, वर्सोवा बीच. And like everybody else, he was also walking on that beach. But he refused to allow the present be the same in the future. He says, I will make my future bigger than the past or the present. He said, my future has to be better. The future cannot be this. Because he saw on the beach, Afroz ने देखा कि यार बीच में ना प्लास्टिक बहुत है और एक जगह तो ऐसा 2-3 फीट का प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है और किसी को पड़ी नहीं है. Nobody is bothered that this plastic has got accumulated here. लोग बीच में वॉक कर रहे हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, एंड किसी को पड़ी नहीं होना एक बात है. People add on to that plastic. और ये भी मैंने एक प्रवृत्ति देखी है लोगों की कि वो जहां कचरा होता है वहां और कचरा डाल के जाती है. और इसलिए मैं कहता हूं कि वो अपने अपने मूड को ठीक करो, अपने आप को अच्छा दिखाओ. क्योंकि अगर तुम एक कचरे के डब्बे के जैसे लग रहे हो ना, in terms of your inspirational level, in terms of your physical level, in terms of तुम्हारा मूड के ऊपर, जो अगर तुम एक कचरे के डब्बे जैसे लग रहे हो, मेरा विश्वास करो कोई ना कोई आके अपना कचरा भी तुम पे डंप करके जाए. तो जहां पर कचरा होता है लोग वहां कचरा और डालते हैं. And he saw that on the beach. यार कचरा है, यहाँ तो प्लास्टिक है इतना और ये प्लास्टिक बढ़ते जा रहा है. तो he says, I refuse to accept this. और उसने हर हफ्ते आके 4-5 घंटा वो प्लास्टिक उठाने का काम शुरू किया. जब वो ऐसा आते रहा तो फिर 1 के 2 हो गए, 2 के 4 हो गए और उसका एक एसोसिएशन बन गया ऑफ द वर्सोवा क्लीनिंग गाइज, जो हर हफ्ते आते थे. और वो हर हफ्ता वो आके 4-5 घंटा दे वुड डेडिकेट देयर लाइव्स टू लिफ्टिंग दैट प्लास्टिक.
और उन्होंने 84-85 मंथ्स 7 साल काम किया। जो 2014-15 में काम चालू हुआ, ये काम शुरू किया और ऐसा करते 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 50 लाख किलो 50 लाख केजीज ऑफ प्लास्टिक उन्होंने लिफ्ट किया और वो पूरा वर्सोवा बीच को साफ किया। एंड ही वाज रिकॉग्नाइज्ड, ही वाज एक्नॉलेज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो मेरा आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर ओन सेल्फ। जो पैशनेट लोग होते हैं वो अपना फ्यूचर कहते हैं, मैं यहाँ रोज वॉक पे आता हूं, ये भी तो मेरा फ्यूचर है, हाउ डू आई वांट टू सी दिस फ्यूचर। सो दे मेक द फ्यूचर बेटर देन द पास्ट। एंड दैट फ्यूचर, जो बहुत बड़ी सोच के लोग होते हैं, दैट फ्यूचर इज देन फॉर एवरीबॉडी एल्स आल्सो। दे मेक मेनी पीपल्स फ्यूचर बेटर। दैट इज द कैपेबिलिटी। तो ये एक, इसकी कहानियां मिल जाएंगी आपको, यू कैन रीड ऑन द नेट। इट्स नॉट अ स्टोरी व्हिच इज ओनली नोन टू मी, दिस स्टोरी इज नोन एवरीवेयर। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कोई पैशनेट इंसान तो होगा ना, बीपीडब्ल्यू तो नहीं करेगा ना। वो डीपीडब्ल्यू भी उस बीच में वॉक कर रहा होगा और पीपीडब्ल्यू भी इस बीच में वॉक कर रहा था। फर्क देखो कि पीपीडब्ल्यू ने क्या किया। पीपीडब्ल्यू ने उस बीच को साफ कर दिया और डीपीडब्ल्यू ने उस बीच को शायद और गंदा किया, या फिर गंदा नहीं भी किया होगा तो ही वाज इनडिफरेंट टू व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द बीच। तो सवाल ये होता है कि हम पीपीडब्ल्यू हैं या हम डीपीडब्ल्यू हैं। सवाल ये होता है कि कैन वी क्रिएट अ फ्यूचर व्हिच इज बिगर देन आवर पास्ट। बिकॉज पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट का अगर कोई मीनिंग है, कोई उसका है, कुछ अगर वजूद है, उसके कुछ अस्तित्व का कुछ सेंस है, तो वो यही है कि पास्ट ने हमारे भविष्य को अच्छा करना चाहिए, तभी तो पास्ट आया ना। अगर पास्ट हमें हमें फ्यूचर के लिए तैयार नहीं कर रहा है तो क्या फायदा उस पास्ट का? जो अतीत हमें भविष्य के लिए तैयार नहीं कर रहा है तो वो अतीत किस काम का? तो अगर अतीत बोल पाता, अगर ये पास्ट के पास जबान होती, पास्ट के पास कुछ काबिलियत होती हमें समझाने की, तो वो यही बोलता कि मैं तेरी लाइफ में इसलिए आया हूं कि तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए। यही तो बोलता पास्ट हमें। Have you ever thought about past like this? That the entire reason why we have a past is to make our future better. There is no other reason why we have a past. The past was not to make our future worse. The past was purely on this. The reason why we all have a memory and other animals, other beings don't have a memory that much as we have. The reason why we are able to keep things here and make it a past, the only reason is that we make our future better from that. The reason why we have a past here is not to make us suffer in the future. ये हमारी स्मृतियां, हमारी यादें, हमारी मेमोरीज, ये हमें भविष्य के लिए, हमें सफर, हमें पीड़ित करने के लिए नहीं है यार। It is all to make our future better. इस बात को आप गांठ बांध के रख लो, इसको आप मनन करो, इसको सोचो जो मैं आपसे कह रहा हूं। And there is no other simple way by which I can communicate this than what I'm doing right now. You there with me on this? So the entire question is, are you building on your past to make your future better? Or is your future just a repeat of the past? कि जो पास्ट में गलतियां कर रहे थे वही आप करते जा रहे हो, जो पास्ट में आप जिंदगी जी रहे थे वही फ्यूचर में जीते जा रहे हो, जो पास्ट में आपका जीने का तरीका था वही फ्यूचर में है। तो फिर इसका मतलब आप डीपीडब्ल्यू हैं। आप नहीं कुछ अपने आप को सोचा नहीं इस बारे में। And PWs, they always understand this simple fact. The past is there to make our future better. So PPWs always work on making their future bigger than their past. क्योंकि उनको ये सिंपल चीज समझ में आ गई, सिंपल चीज समझ में आ गई। तो बहुत से लोग जो है ना सफर करते हैं, सफर इस जिंदगी के सफर में, जो हिंदी वाला सफर है, जिंदगी के सफर में दे सफर, इंग्लिश वाला सफर दे सफर। और उनका सबसे बड़ा कारण सफर का, ये सफरिंग का सबसे बड़ा कारण
is their storage problem. बोलते ना घरों में जितनी आपकी स्टोरेज स्पेस होगी, जितने आपके ये टाट होंगे, ये एटिक हो गया, बोलते ना बाथरूम के ऊपर स्पेस, उधर अलमारी के ऊपर स्पेस, आपके ये बेड के नीचे स्पेस, आपके कैबिनेट्स में कहा जहां 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 आपका स्पेस होगी, आप क्या करोगे? उस स्पेस में आप चीजों को रख दोगे। Am I right or not? उस स्पेस में आप चीजों को भर दोगे। That's what you would do. तो अगर अगर स्पेस ही नहीं होगी तो आप भरोगे ही नहीं। तो ये घरों की प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार कम से कम स्टोरेज स्पेस रखो। ना जगह होगी, ना तुम चीज रखोगे, ना चीजें भरी भरी रहेंगी। इन द सेम वे वी हैव स्टोरेज स्पेस हियर। अब इसका कुछ नहीं कर सकते। ये तो बाय डिफॉल्ट, बाय डिजाइन स्टोरेज स्पेस आया हुआ है। अब ये स्टोरेज स्पेस आया है, तो ये स्टोरेज स्पेस का मतलब क्या है? इट इज नॉट टू मेक यू सफर कि किसने क्या बोला, किसने क्या कहा। इट्स नॉट टू मेक यू सफर। दैट स्टोरेज स्पेस इज टू मेक यू बिल्ड योर फ्यूचर. It's to help you create a bigger and a powerful future. So, ये oh, Siley says indirectly the worst past will be best future for PPW. Absolutely. If you can just understand this, कि the past is, ये just एक thought process को रख लो अपने पास. Just this thought process. The past is not to make my future worse. The only reason I have a past. सिर्फ एक बात को अपने एक इट्स अ बिलीफ सिस्टम ना, जैसे धारणाएं होती हैं और हम उन धारणाओं पे हम काम करते हैं। इनफैक्ट वो धारणाओं से हम जिंदगी जीते हैं। तो मैं कहता हूँ इस धारणा को भी रख लो आप। हैंग ऑन टू दिस बिलीफ सिस्टम, हैंग ऑन टू दिस माइंडसेट, जो भी आप इसको बोलना चाहोगे, अजम्पशन, माइंडसेट, धारणा, बिलीफ, जो आपको बोलना है बोलिए इसको, बट हैंग ऑन टू दिस थॉट प्रोसेस कि योर फ्यूचर शुड बेनिफिट, योर फ्यूचर शुड बेनिफिट फ्रॉम योर पास्ट. The reason you have a past, the only reason you have a past is to make your future better. और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हम पास्ट के साथ हम जाति कर रहे हैं. We are kind of, it's a disgrace to the past. It's injustice to the past that we are not using it to catapult ourselves to the future. We are not using our past as a springboard to take us to the future. ये तो जाति होगी, ये तो injustice होगी. So every day which you live by, every week which you live by, every year which goes by, the objective of that day, the week, the month, the year is to give you a great future. So आज के HM में, हाँ जी, कुछ घंटी बजी. नेक्स्ट HM में मेरा बैच चालू रहेगा, but I'll still take the HM in the morning and then go for my batch of Life 360. I'm excited about it. Some of you on the verge of taking a call of Life 360. आ जाओ मेरे साथ, 3 दिन जबरदस्त हंगामा करेंगे, जबरदस्त एक जर्नी में जाएंगे. Send your loved ones. If you have any of your loved ones who would like to be a part, we have people coming from various places, different industries. वहां से लोग आ रहे हैं. एक अच्छा बैच खड़ा हो रहा है. I'm just excited for this batch to kickstart, and another group of people who will be a part of the family of Chrysalis, and it's going to be a wonderful journey. So do share your with your friends and loved ones who want to be a part of that batch. It's starting on 24th, 25th, 26th, 3 days dhamal with me. So I'm sure the future for all of us is going to be very powerful. So have become a perpetual PPW since I met you. Wow. घंटी बजी, कहते जोर से बजी. PPWs don't try to fit in. They do what they believe in. Absolutely. Uma, I think you had messaged about a culture issue. Is that you? I don't know whether you're the same Uma or not. I've given a response to you on your social media handle if you're the same one. So there's a ठीक है, पढ़ लेना मेरा reply to you. PPW is always anchored with higher purpose. Absolutely. तो आज जो तुमने सीखा, जो तुमने पिछले हफ्ते सीखा on about PPWs,
You have a responsibility. All of you have a responsibility यार. अभी तुम्हें PPW के माफिक जीना पड़ेगा. इतना तो यार अभी हक बनता है मेरा तुमसे कहने का. तुमने मेरा इतना टाइम लिया है, all of you. तो तुम्हारा अभी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी, that you live your life like a passionate person working, a passionate person living, right? PPW, PPL, जो भी तुम्हें बोलना है बोलो. You are a passionate person living. एंड जब पैशनेट इंसान जब जीता है तो वो जो काम में होता है उसमें चार चांद लगा देता है. वो जो रिश्ते होते हैं उसमें वो चार चांद लगा देता है. वो जो जहां भी जाता है वो उसको अच्छा ही करके आता है. और अच्छा नहीं भी करता ना तो उसको बुरा तो नहीं करके आता. ये बात तो पक्की. सो एटलीस्ट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिकमिंग दैट. Energetic. Now, thanks for creating PPDs in us. Passionate. क्या है PPW? क्या है ये PP? Challenge part is judging people on PPW. Don't judge. Don't judge. I think you should just keep your बोलो साफ रखो. अपना देखने का नजरिया साफ रखो. उसको जो हमारा just like your spectacle, जैसे मेरे spectacles है ना, इसको clean रखो. तो clean रखोगे तो वो दिखेगा जो दिख रहा है. जब हम इसको पहले से bias रखेंगे, नहीं नहीं ये PPW है, ये DPW है, तो फिर शायद हम वैसे ही वो बोलते हैं ना कि in law there's a word called confidence bias. तो वकील जो होता है वो जब उसको confidence होता है कि यार ये तो चोरी है, तो फिर वो उस bias तरीके से वो करता है छानबीन या उसके support में बातें करता है. In the same with the judge, if he has a bias towards something, he will see. So we all have a bias. So I feel that वो bias हमें जो है सही चीज देखने से रोकता है. So but be observant, just see things and then उसके बाद आप observation पे लाओ कि हाँ भाई ये क्या देखा मैंने. But देखते समय तो साफ देखो. देखने के बाद maybe we can judge. But you will come across a lot of PPWs, a lot of DPWs around you. To start implementing, yes, you will share. Okay, yes, do share, Chandramohan. Gulshan. And all those who came in for the first time, thank you for coming for Happy Minds. And if you have been alive till the end with me, then do come next week and do share with as many friends and relatives of yours to be there with Happy Minds. Let's make this world a world full of PPWs, right? Let's have passionate people around us. Let's create a world where people are the sources of inspiration for each other. Let's create a world where we all outgrow our past and make our future so very powerful. Let's create a world where we have people who hang on to the higher, they hang on to the bigger around them. And आप फिर देखो, जब ऐसे हमारे आसपास लोग होंगे, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो टीम में हो, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो दोस्तों में हो, जब ऐसे लोग होंगे जो हमारे आसपास होंगे, जो पैशनेट होंगे, जो बड़े से कनेक्ट करते होंगे, जो फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए तैयार होंगे, तो फिर उनकी संगत में रह के इतना बढ़िया इकोसिस्टम बन जाएगा दैट हम रह के ही आगे बढ़ जाएंगे. We cannot be left behind. उस मोमेंटम में हमारा मोमेंटम मेंटेन रहेगा. That's the beauty of it. अगर हवा जो है हमारे आसपास प्योर है तो उसका असर हम पे होगा ना. क्यों नहीं हमारी बॉडी अच्छी होगी? क्योंकि एयर प्योर है. तो क्या हमारे आसपास की हवा प्योर है? बस इतना ध्यान रखना है. उसके लिए जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए. So thank you for everybody for being here. Thank you Prashant, Swaroop. Acha, okay, before you all go, there's a sugar challenge I missed out. Okay, there's an activity for all of you. Okay, all of you, we have lined up an act. मैंने भूल ही गया. I'm so sorry, team ने मुझे याद दिलाया. आप क्यों ये भूल जाते हो सब चीजें? बह जाते हो अपने अपने बातों में. कुछ लोग जो लॉग आउट कर लिया, but please hold on to this. एक बहुत सुंदर सा एक हम 21 days of no sugar challenge शुरू कर रहे हैं. तो ऐसा अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है, आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ, you want to be a part of this, तो आप बोल दीजिएगा हमारी टीम को. We will make a WhatsApp group. ऐसा हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे and 21 days का no sugar in any form हम लोग कर रहे हैं for that people they stay healthy, they kind of work on the health and whatever. तो मैं कुछ we have no mechanism कि हम चेक करें कि आप शुगर ले रहे हो नहीं ले रहे हो. एक खुद से वादा है और हमारा काम है. हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप we have all the people in the WhatsApp group जो इस चैलेंज में आएंगे. And they can share as to how they're feeling and then how many days they have been able to have no sugar and things like that and what has been the effect on the body. तो ऐसा एक 21 days का आज से हम शुरू कर रहे हैं no sugar
days, 21 days of no sugar. It's a challenge. So, you know, so क्या चैलेंज क्या होता है? चैलेंज इज रचना ने वहां से शेयर किया मेरे साथ. शी सेज आप भूल जाते हो बार बार ये शेयर करना, आप अपने उसमें बह जाते हो. तो चैलेंज क्या होता है कि इट्स काइंड ऑफ एन एंकरिंग, इट्स काइंड ऑफ यू नो एंकर कि एक हमें कुछ चैलेंज चाहिए होता है ना. तो कोई तो हो जो हमें वो चैलेंज करवा दे, कोई तो है जो माहौल बना दे हमारे लिए. तो हमने कहा एक चैलेंज के रूप में कि चैलेंज किया. तो चैलेंज करते हैं तो फिर आदमी कहता है यार इसको तो पूरा करेंगे. अगर कोई ऐसे बोले यार let's not have sugar for the next few days, you may not feel the appeal to it, but ये चैलेंज है तो 21 दिन शुगर के बिना शुगर के रह के दिखा. तो मेरा आप सबको चैलेंज है, अगले 21 डेज तक बिना शुगर के आप जी के दिखाओ. मेरा चैलेंज है. चैलेंज स्वीकार है मेरा? हाँ जी, चैलेंज स्वीकार है? विल यू एक्सेप्ट माय चैलेंज? फिर देखो मैजिक, अगले 21 दिन में नो शुगर का चैलेंज. फिर उसका मैजिक देखेंगे 21 दिन में हुआ क्या. ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अच्छा ये ओके आज से चालू नहीं हो रहा है, 23 मार्च से चालू हो रहा है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 23 मार्च. हमें 2-3 दिन लगेगा पूरा ग्रुप बनाने में. किसी को कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ शुगर नहीं खानी है बस, और कुछ नहीं करना है. कहीं पर एक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक गूगल फॉर्म आ जाएगा, आप उसमें सिर्फ टिक कर दो आई एक्सेप्ट द चैलेंज. मुझे चैलेंज स्वीकार है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं कि अगले 21 दिन तक मैं शुगर नहीं खाऊंगा. बस ये आपने क्लिक करना है एंड देन वी विल मेक यू अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. और फिर कुछ नहीं, फिर आपने सिर्फ शुगर नहीं खानी है. हाँ खाना खाते रहना लेकिन शुगर नहीं खानी है. और चीट ना करना कि आप किसी और फॉर्म में शुगर ले रहे हो. तो चाय में चीनी नहीं, मीठा बिल्कुल नहीं, यू नो ये केक पेस्ट्री ये वो सब बिल्कुल बंद. नो शुगर फॉर नेक्स्ट 21 डेज. एंड लेट्स सी देन आई विल हियर योर स्टोरीज की हुआ क्या 21 दिन के बंद करने के बाद. ठीक है. वो बोल रहे हैं कि आपने 5 दिन टाइम दिया शुगर खाने के लिए. तुम लोग भी कमाल के लोग हो. हाँ तो तो, तो ऐसा नहीं है. वो क्या मानसी ने क्या लिखा है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? आई मिस्ड आउट ऑन दैट. तो प्लीज ऐसा नहीं कि 5 दिन की तुम पूरी कसर अभी निकाल लो और फिर 23 तारीख तक तुम उसको रिकवरी मोड में आ जाओ. ठीक है. हाँ सर, सर ने थोड़ा ना लिया चैलेंज ऐसे. हाँ तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी को शुगर है, किसी को प्रॉब्लम है. अच्छा ओ मानसी सेज कि सर आपका बर्थडे इस चैलेंज में आ रहा है तो आई विल हैव अ नो शुगर केक ना. अरे केक भी तो बिना शुगर के बन सकता है. हाँ विल हैव अ वाटरमेलन को हम वो करेंगे, तरबूज काटेंगे, पपीता काटेंगे, खरबूजा काटेंगे, कुछ भी करेंगे. बिना चीनी के भी केक बन सकता है. सेलिब्रेशन हो सकता है. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फर्स्ट where my birthday is going to be on a no sugar day. ठीक है. तो जैगरी भी बंद करो ना अभिजीत. हाँ तो anything which sweet. Jaggery is not bad for health, but still I say that why to keep that duality. जैगरी भी नहीं खाएंगे. ऐसा कर लो. ठीक है. I feel. चलो. क्या बोले? I was having my cup of tea because I have to promise. of quickly gulping my cup of tea. ठीक है. चलो, let's all make a great healthy life for ourselves. Our future has to be bigger than our past. ठीक है. तो physically also हमारे अगले 21 दिन हमारे पास के 21 दिन से अच्छे होंगे. इस बात का प्रण लेते हुए let's log off for today. Love you for being there. Love you for being part of this Happy Minds, and look forward to an awesome Happy Minds next week. And because I have a lot of assignments lined up back to back, and I'm waiting and excited about the batch to start, the 140th Live 360 batch kickstarting next week. So look forward to it. Those of you are there. Thank you so much, and God bless you.